بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی محترم، تو ہمارا خلاصۃ النحو کے اسباق کا سلسلہ چل رہا تھا، اور مرکب توصیفی کا بیان ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا، تو اسی کو ہم تھوڑا سا آج کنٹینیو کرتے ہیں، اور مکمل آج کا سبق یہ پورا کرتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی دراصل مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ مرکب ناقص ہم نے پڑھا تھا نا کہ مرکب جس مرکب سے بات سمجھ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، جس مرکب سے بات سمجھ آ جائے اس مرکب تام کہتے ہیں، اور جس مرکب سے بات سمجھ نہ آئے تو اس مرکب ہر ناقص کہتے آواز پھر ویسے ہی کٹنے لگ گئی ہے۔ ہیں۔ جس مرکب سے بات سمجھ آ جائے اس کو مرکب تام کہتے ہیں، اور جس مرکب سے بات سمجھ نہ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور جی مرکب ناقص کی دو قسم بنتی ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہے؟ مضاف علیہ والا سبق۔ مضاف یہ کس دن ہوا تھا سر؟ یہ اس سے پہلا سبق ہے، سادسہ والا، سادس سبق، الدرس السادس، چھٹا سبق۔ نہیں سر، کل اور پرسوں کے دن میں کلیئر کرنا ہے۔ دراصل یہ چیزیں نا، ایک چیز کی دوسری چیز پر جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، ایک چیز نہیں آئے گی تو پھر دوسری چیز کی اس کی بنیاد ہوگی تو پھر وہ چیز بھی سمجھ نہیں آئے گی، تو یہ آپ کلیئر کرتے جائیں، اور کلاسز جو ہے نا انشاءاللہ۔ وہ آپ پابندی کے ساتھ جو ہے وہ لیجیے۔ آپ کی ابتدائی سال ہے، تو ابتدائی سالوں کے ٹھیک۔ اندر ہی جو ہے وہ کمی کوتاہی رہ جائے گی، تو پھر آگے جا کے مزید اس کے اندر کمیاں رہ جائیں گی، تو پہلے سے ہی چیزیں کلیئر کرتے جائیں، اسباق سمجھتے جائیں، پوچھیں، لکھیں، سنائیں، تو اس طرح ہو جی صحیح محترم؟ جی ٹھیک ہو گیا سر، آئندہ نہیں ہونے لگا۔ جی، تو مرکب توصیفی کا یہ سبق ہے۔ مرکب ناقص کی یہ قسم ہے، ایک قسم جی مرکب اضافی ہے، اور دوسری جو قسم ہے وہ مرکب توصیفی۔ توصیفی۔ توصیفی یہ لفظ سے ہی واضح ہے، توصیف کا مطلب ہوتا ہے صفت، تو اس کے اندر جو مرکب ہوتا ہے، مرکب کا مطلب ہوتا ہے دو جملے، دو الفاظ کا مجموعہ، دو یا دو سے زائد الفاظ کی مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے نا، تو دو الفاظ ہوں گے، دو اسم ہوں گے، جو دوسرا جز ہوگا وہ پہلے جز کی کیا کرے گا، صفت بیان کرے گا، دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے گا کہ جو پہلا جز ہے وہ اچھا ہے، پہلا جز برا ہے، پہلا جز ایسا ہے ویسا ہے، تو جسے ہم انگلش کے اندر ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ تو جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے پہلے جز کی اچھائیاں برائی بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جی، پہلا دوسرا جز پہلے جز کی، جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ توصیفی تو جی، جیسے رجل صالح، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب نہیں پتا سر۔ رجل صالح، صالح ایک شخص، رجل کا مطلب ہے صالح، اور رجل کا مطلب ہے بندہ، شخص، صالح کا مطلب ہے صالح، نیکوکار، صالح نیکوکار بندہ، بندہ۔ ہاں صالح بندہ۔ تو اب دوسرا جز کون سا ہے، رجل ہے یا صالح ہے؟ دوسرا جز صالح۔ ہاں، اور پہلا جز کیا ہے؟ راجل، یعنی کہ رجل، آ، بندہ۔ بندہ، بندہ، تو دوسرا جز صالح یہ صفت بیان کر رہا ہے پہلے جز رجل کی۔ راجل۔ ہم، تو یہ پہلا جز ہے صالح،
दूसरा जुज़े साले वो सिफत बयान कर रहा है पहले जुज की। जी। तो ये मुरक्कब कौन सा मुरक्कब हुआ? मुरक्कब तौसीफी। तौसीफ। इसी तरह हम दूसरी मिसाल ले लें, राजुलुन फासिकुन। मतलब फासिकुन का क्या मतलब है सर? फासिक मतलब फासिक यानी गुनाह, गुनाह बुरा, करने वाला। गुनाह करने गुनाह वाला करने, बंदा। जी, गुनाहगार, फासिक, फिसिक करने वाला। जी। तो फासिक इसमें बंदा। आ, कौन किसकी सिफत बयान कर रहा है? फासिकुन, ये सिफ्त बयान हो रही है राजुल बंदा, यानी कि मुरक्कब तौसीफी है ये। जी, कौन सिफत बयान कर रहा है? वो लफ्ज कौन सा है? लफ्ज फासिक। फासिक, ये वाला। तो ये सिफत हुई, और रजुलन ये क्या बना है? मौसूफ। मौसूफ। और तीसरी मिसाल देख लें, हजरुन असवदु, मतलब काला काला पत्थर। पत्ती, काला पत्थर। तो इसके जी। अंदर जो सिफत बयान करने वाला लफ्ज है वो कौन सा है? असवद। अस्वद। अस्वद का मतलब क्या है? काला। पत्थर। काला। काला, जी। काला। और हजर उनका क्या मतलब है? पत्थर। पत्थर, जी। तो दूसरा जुज पहले जुज की सिफत बयान कर रहा है। दूसरा जी। जुज कौन है? पहले से अस्वद, असवद यानी कि काला। जी। ठीक है, तो ये जो साले है, ये जो फासिक है, ये जो अस्वद है, ये सारी की सारी सिफतें हैं। जी। ठीक हो गया। तो इन तमाम जी। जी। मुरक्कबात को मुरक्कब तौसीफी कहा जाता है। अब फरमाते हैं कि मुरक्कब तौसीफी के पहले जुज को मौसूफ और दूसरे जुज को सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले जुज को मौसूफ और दूसरे जुज को सिफत कहते हैं। जी, ठीक हो गया। हमने तीन मिसालें पढ़ी, तो इनमें बताएं मौसूफ कौन है, सिफत कौन मौसूफ कौन है और सिफत कौन है? राजुल सालिहुन। है? रजुलुन क्या है? मौसूफ राजुल मौसूफ है, और सिफत जो है ये सालिहुन है। क्या बात। और दूसरा मिसाल, इस राज इसमें भी सेम ही। राजुल जो है वो मौसूफ है, और फासिकुन सिफत है। ठीक हो गया। हाजरुन अस्वद, इसमें हाजर मौसूफ है, और असवदु ये सिफत है। अच्छा, ठीक है। तो तीर नजर आ रहे हैं? जी आ रहे हैं नजर। जी, ठीक हो गया। तो समझ भी आ रहा है, माशाल्लाह। जी समझ आ रही है। जो चीज हो ना, क्या नाम है, जिसकी सिफत बयान हो रही हो ना, वो जी, मौसूफ होता है, मौसूफ कहलाता है। ठीक हो गया। आगे बयान करते हैं कवायद और फवायद। मुरक्कब तौसीफ के फवायद और कवायद कवाइद। जो है वो बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं जी। कि उर्दू में सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। और, और जबकि अरबी में पहले मौसूफ आता है और सिफत बाद में आती है। जी। ठीक हो गया। उर्दू में क्या जी। पहले आता है और उर, क्या बाद में आता उर, उर्दू में पहले सिफत आती है फिर मौसूफ। सॉरी, पहले मौसूफ मौसूफ आता है, फिर बल्कि पहले सिफत आती है उर्दू में। है? उर्दू में पहले सिफत आती है ना। जैसे जी। हमने पहले मिसाल पढ़ी, काला पत्थर। तो काला होना ये क्या जी। है? सिफत है। ठीक जी। हो गया। और अरबी में जी। पहले क्या आता है? हाजारुन, यानी अरबी में कि पहले मौसूफ आता है, सिफत असवद बाद। आते हैं। जी। ठीक हो गया। तो जी क्या ठीक। पढ़ा हमने कि उर्दू में पहले सिफत आती है, मौसूफ बाद में आता है, और अरबी में उलट है, पहले मौसूफ आता है फिर सिफत आती है। सिफत आती है। जी। हाँ। जैसे अब है मिसाल देख रहे हैं, रजुलुन तिफलुन जमीलुन। क्या मतलब है इसका? आगे तर्जुमा लिखा हुआ है।
طفل بچہ، جمیل خوبصورت. خوبصورت بچہ. طفل جی، جمیل. خوبصورت بچہ. تو پہلے آ، یہ عربی دیکھ لیں تو طفل یہ موصوف ہے، جمیل یہ اس کی صفت ہے، اور اردو میں دیکھ لیں خوبصورت یہ صفت صفت ہے، وقت پہلے آ گئی، یہ بچہ موصوف ہے بعد میں آ گیا. بعد میں. بعد میں. یہ پہلا قاعدہ تھا. قاعدہ پہلا کیا تھا بتائیں؟ قاعدہ مطلب ساتھ. پہلا جو ہم نے پڑھا نا اردو، یہ فرسٹ نمبر، کہ اردو ہاں، میں پہلے کیا اردو آتا میں ہے؟ جو ہے وہ صفت، اردو میں پہلے صفت آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. اور عربی میں اس کا الٹ ہے. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، جیسا کہ طفل جمیل، خوبصورت بچہ. اور عربی میں اب طفل پہلے ہے، اس کا مطلب بچہ ہے، تو جمیل جو ہے یہ خوبصورت اس کا مطلب ہے. تو اردو میں جو ہے خوبصورت بچہ اس کا مطلب اب بنے گا، جی یعنی ٹھیک کہ ہو گیا. صفت پہلے آ گئی، موصوف بعد میں. جی بالکل صحیح. آگے فرماتے ہیں صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ. صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. جو دوسرا جز ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صفت. تو جی صفت اگر کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ ہوتا ہے. تو یہ صفت کیا ہے؟ جمیل یہ مفرد ہے. جی. تو اگر مفرد ہو تو مفرد پھر ایک کو کہتے ہیں اور مرکب دو یا دو سے زائد کو. جی بالکل جی. ٹھیک ہے. تو اگر صفت ایک ہو تو پھر 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. کتنی چیزیں؟ 10 10 چیزوں. چیزیں میں موصوف کے مطابق اس کا ہونا ضروری ہے. ایک ہے مفرد تثنیہ جمع ہونا. افراد تثنیہ جمع کا کیا مطلب ہے؟ افراد افراد کا مطلب ہے واحد، تثنیہ ہم، دو، جمع تین یا تین سے زائد. ٹھیک. تو اگر مفرد جو صفت ہے وہ مفرد ہو تو اگر موصوف مفرد ہو تو صفت بھی مفرد ہوگی. اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی. اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی. مثال صحیح دیکھ ہو لیں گیا. جیسے رجل عالم. تو رجل کیا ہے؟ موصوف ہے یا صفت ہے؟ راجل موصوف ہے. موصوف ہے. اور مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ مفرد. اور ہے مفرد. 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 مفرد ہے. تو عالم بھی کیا آ گیا؟ عالم میں مفرد ہی ہے. مفرد ہے. دوسری مثال دیکھیں یس. رجلان عالمان. اس میں کیا ہے بتائیں؟ رجولان یہ تسنیہ ہے، جی اور یہ رجولان جو ہے یہ موصوف ہے، اور عالمان یہ صفت ہے. جی. اور یہ تسنیہ ہے، رجلان بھی تسنیہ ہے اور عالمان بھی تسنیہ ہے. ہے. اور ایک دوسرا ہے رجال علماء. یہ جمع ہے، اور رجال جو ہے یہ موصوف ہے، اور علماء یہ صفت ہے، یہ جمع ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. تو کیا بیان ہوا کہ اگر موصوف مفرد ہو تو صفت بھی مفرد، اگر موصوف جمع ہو ہاں جی. تو صفت بھی تو جمع، موصوف جمع جی. اور تسنیہ ہو اور تو پھر اگر موصوف کی جو ہے وہ تسنیہ ہی ہوگا. جی. تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہے نا. تین چیزیں. ہاں جی. جی. اس کے بعد 3 چیزیں ہیں رفع نصب جر. رفع کا کیا مطلب ہے؟ پیش کو رفع کہا جاتا نصب. ہاں نصب ہے. فتحہ. زبر. اور جر مطلب زیر. زیر. تو موصوف پر اگر رفع ہوگی تو صفت پر بھی رفع ہوگی. موصوف پر جی. اگر نصب ہوگی تو اس پر بھی نصب ہوگی. جر ہوگی تو جر ہوگی. ٹھیک ہے. کب؟ جب صحیح. جو موصوف جو صفت ہے وہ مفرد ہو. سر یہ اینڈ والے لفظ پر دیکھا جاتا ہے، اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ رفع ہے یا نصب.
जी जी या बिल्कुल। आखिरी आखिरी जो लफ्ज है। आखिरी लफ्ज पर जो भी होगा उसके एतबार से उसको देखा जी जाएगा। जी। जैसे यहाँ पर सही है। रजुलन के अंदर आखिरी लफ्ज कौन सा है? लाम के ऊपर पेश, तनवीन लाम है के दो ऊपर पे, पेश। तो जी। आलमन पर भी पेश आ गया। जी। ठीक है। और दूसरी मिसाल में ठीक होगी। राजुलन, आलिमन। दोनों पर क्या है? जी। जबर। और रजुलिन दो जबर, आलिमिन, दो जेर। दो ठीक है जेर। दोनों। जी। जी। जी, और ये कितनी चीजें हो गई? तीन। तीन ऊपर वाली, और तीन ये तीन तो छह हो गए। छः। और दो मजीद हैं, तज़किर और तानीस। तज़किर और तानीस का क्या मतलब है? तस्कीर नहीं पता सर। तानीस का क्या मतलब है? नहीं पता सर इनका। तस्कीर और तानीस का। ये सबक पढ़ा था ना पीछे। जिन्स कितनी है? दो जिन्स है ना, एक तो मुजक्कर होना, एक मुअन्नस होना। तो इसका जी। यही मतलब है, तज़कीर का मतलब है मुजक्कर होना, मुजफ्फर। और और तानीस का तानीस का मतलब मतलब मोनस। मुअन्नस। तो मुझे मुजक्कर अगर, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, और मोनस औरत के लिए इस्तेमाल होता है। जी, जी बिल्कुल। तो फरमाते हैं कि अगर जो मौसूफ है वो मुजक्कर हो तो उसकी सिफत भी क्या आ जाएगी? मुजक्कर ही होगी। उसके बाद फरमाते हैं कि मौसूफ अगर तानीस हो, मुअन्नस हो, तो फिर उसकी सिफत भी। मोनस ही आएगी। जी, जैसे रजुलुन आलिमुन, हाँ, ये राजुलन आलिमुन, इसमें दोनों क्या ये है? मुजक्कर। जी, माना क्या है इसकी? राजुलन बंदा, जी आलिम बंदा। जी ठीक हो गया माशा। आगे है इमरातुन आलिमतुन। आलिम इमरत, औरत। जी, आलिम औरत, तो इसमें मौसूफ कौन है और सिफत कौन है इमरातुन आलिमतुन में? मौसूफ जो है वो इमराअतुन है, और आलिमतुन सिफत है। जी ठीक हो, सही है। उसके जी। बाद ये कितनी हुई किस्में? आठ। जी, आठ हो गई। और दो ये हैं, तनकीर व तारीफ। तनकीर व तारीफ का मतलब क्या है मालूम है? तनकीर का मतलब है नकरा होना, तारीफ का मतलब है मारिफा हो। नकरा और मार्फा। सर नकरा और मार्फा की भी थोड़ी वजाहत बयान कर दें। नकरा और मारिफा का पीछे सबक हमने पढ़ा है, इसलिए मैंने अर्ज किया ना कि जो चीज़ें आगे आएंगी वो पीछे वाली चीज़ों पर ही मौकूफ होंगी। तो डिपेंड करती होंगी। मारिफ, जी। जी मारिफा और नकरा का भी सबक पढ़ाया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो वो देख लीजिएगा। अब जी। ये पूरा सबक रिवाइज करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, वैसे थोड़ी सी बस वजाहत फरमा दे, मार्फा किसे कहते हैं और नकरा किसे कहते मारिफा, हैं। मारिफा कहते हैं जो खास हो, और नकरा कहते हैं खास। जो आम हो। आम, जैसे एक कॉमन नाउन होता है और दूसरा प्रॉपर नाउन एक होता है। प्रॉपर नाउन। जी। तो यही मुराद है, मारिफा से मुराद है प्रॉपर नाउन, और जो नकरा है उससे मुराद है नकरा है। कॉमन। ठीक हो गया। मार्फा जो है वो तारीफ को कहते हैं, और नकरा तनकीर को। जी जी बिल्कुल। सही हो गया। अब मुआरफा खास, और नकरा आम। ठीक हो गया। जी। अब मिसाल बयान करते हैं, रजुलुन आलिमुन, हम्म, आलिम बंदा। अब दोनों क्या है? नकरा है, रजुलुन भी नकरा है, नक, आलिमुन भी नकरा है। नकरा है। जी। आलिम बंदा, आलिम बंदा कोई सा भी बंदा, किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का। अब इसके अंदर तखसीस नहीं है कि फलां शहर का बंदा, तखसीस हो जाती। जी। ठीक है, तो दोनों नकरा आ गए। उसके बाद है जो नकरा की मारिफा की मिसाल है, वो है अर रजुलुल आलिमु।
الراجل मतलब खास आलिम बंदा। जब अलिफ लाम दाखिल आ खास। जाए तो, हाँ, अलिफ लाम जब दाखिल हो जाए तो उसको वो मारिफा बन जाता है। उसका मतलब अलिफ लाम का मतलब खास। जी जी। अलिफ लाम जब किसी इस्म पर, जिस नकरा पर दाखिल हो जाए ना, तो फिर वो मारिफा बन जाता है। सही हो गया। जैसे आलिमुन, कोई सा भी आलिम, अल आलिम लगाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा खास आलिम। खास खास आलिम जी। ठीक हो गया। तो अब इसमें मारिफा नकरा है, तो जो मौसूफ है वो नकरा है, तो उसकी सिफत भी नकरा आ गई। जी और सिर्फ, आगे। और मारिफा है तो फिर उसका, उसकी सिफत भी मारिफा आ गई। मार्फा आ गई थी। उसके बाद फरमाते हैं, ये हो गई, ये तब थी, ये 10 चीजें में मुताबिकत होना तब लाजिम है जब उसकी सिफत क्या हो, मुफरद हो या जुमला हो। मुफरद हो। मुफरत सिफत। सिफत, ये जितनी भी मिसालें हमने पढ़ी सिफतों की, तो इनके अंदर सिफत क्या है, मुफरद है, जुमला मुफरत नहीं। है हाँ जी। जी मुफरत है। तो अब मिसाल आएंगी जुमले की, सिफत क्या होगी, जुमला होगी। फरमाते हैं कि सिफत अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ के मुताबिक एक जमीर का होना जरूरी है। जरूरी। जुमला है तो अब जुमले में एक ऐसी जमीर होगी जो मौसूफ के मुताबिक होगी। तो मौसूफ अगर मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर होगा। ठीक है। जमीर भी मुजक्कर की होगी। जी। अगर मौसूफ मुअन्नस है तो जमीर भी मुअन्नस की होगी। जी। कायदा क्या है बताएं। कायदा है क्या। कि सिफत अगर जुमला हो, उससे मौसीफ मौसूफ के मुताबिक एक जमीर का होना जरूरी है। जी, जिस मिसाल ले लें कि जा रजुलन अबूहु आलिमुन, जा रजुलन अबूहु आलिम, और आलिम। ये सिफत। और अबू हो रजुलन, आलिम। रजुलन क्या है, मौसूफ है। मौसूफ। तो रजुलन मौसूफ है और उसके बाद वाली जो जुमला आ रहा है वो उसकी सिफत है। तो सिफत अगर जुमला हो तो उसमें एक जमीर का होना जरूरी है जो मौसूफ के मुताबिक हो। तो मौसूफ क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है। मौसूफ मुजक्कर है। मुजक्कर है। और इसका तर्जमा भी आप समाप्त कर लें कि ऐसा बंदा आया जिसका वालिद आलिम था। ऐसा जी। शख्स आया जिसका वालिद जिसका वालिद आलिम था। आलिम था। तो अबू आलिमुन, ए- ये सिफत है रजुलन की। इसमें सर जमीर क्या है, जमीर क्या है। जमीर ये हु जमीर है। अबू हु, अबू तो अबू होता है ना, अबू वालिद, हु उसका आलिम, जैसे उसका वालिद। जैसे वो जमीरें हैं, हुआ हुमाहुम हिया हुमाहुन्ना वाली। जी जी। जमायर का ये। इंशाल्लाह बयान आएगा। 5 तरह की जमायरें होती हैं। हुआ हुमा हुम भी जी। होती है, हा हुमा हुम भी होती है, अंत अंतुमा हिया अंतुम भी होती है। हुमाहुन जी। ये का कुमा कुम अंति ये अंतुमा अंतुन्ना। जी। जी जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो जमायर का बयान आएगा आगे। तो यहाँ पर जमीर कौन सी है, हु वो। और मुजक्कर की जमीर है कि मुअन्नस की जमीर। मुजक्कर की। मुजक्कर की जमीर। ठीक हो गया। तर्जुमा क्या है जी। इसका, कलिमा। तर्जुमा। तर्जमा। ऐसा बंदा जिसका वालिद आलिम ऐसा था। बंदा आया ऐसा बंदा आया जिसका वालिद आलिम था। है। है। दूसरा जुमला है, ज़हबत इमराअतुन अबूहा आलिम। अब ज़हबत का मतलब है गई, ऐसी औरत गई। ऐसी औरत के जिसका वालिद आलिम है। हाँ। ठीक है। तो इस जुमले के अंदर, इस जुमले में जो इमरातुन है वो क्या है, इमरतुन मौसूफ है।
इमरातुन मौसूफ है और अबूहा आलिमुन ये क्या है? ये सिफत है, ये और ये सिफत है। मोनस की सिफत है। मोनस की सिफत है और इसके अंदर से जमीर कौन सी है? हाँ। हाँ जमीर। वाह। सही। ठीक हो गया। तो कायदा हमारा ये याद रखिएगा, आपके सिफत अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ के मुताबिक जमीर का होना जरूरी है। मौसूफ अगर मुजक्कर हो तो जमीर भी मोनस की, मौसूफ अगर मोनस हो तो ठीक है। तो क्लास का टाइम खत्म हो गया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।